इंडिया गठबंधन ने डिमांड इलेक्शन कमीशन से ये की है कि अगर आप वीवीपैट नहीं हटा रहे हैं, वीवीपैट से और ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, तो उनके हाथ में पर्ची आनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से वो उनके हाथ में आनी चाहिए और वो पर्ची फिर वो बैलेट बॉक्स में डालें और उन पर्चियों की 100% काउंटिंग हो, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। अदरवाइज जो प्रेजेंट सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें ईमानदारी से चुनाव की कोई संभावना नहीं है। जय भीम, नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो मेहमान और साथ में हैं। अभी तक तो भानु प्रताप सिंह जी, मैं, राजेंद्र जी, कपिल जी, महमूद प्राचा जी, हम लोग करते रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वीसीके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तिरुमावलवन जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से अपने तमिलनाडु से, और दूसरे डॉक्टर रवि कुमार जी, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से। दोनों आप जनरल सेक्रेटरी from VCK, working based on Ambedkar ideology for the past 3 decades. We have 2 members of Parliament, Lok Sabha. We have 4 members in Legislative Assembly, Tamil Nadu. We are opposing strongly the EVM system in election. We are one of the party of India Alliance. India Alliance also opposing strongly the EVM system. We have passed a resolution in the last meeting. All the India allied parties leaders demanding election commission to implement 100% VVPAT system along with EVM. Each and every voter should get VVPAT receipt and they have to put it in separate box, ballot box. At the time of counting, the VVPAT must be counted. Only VVPAT must be counted and declare the results of the election. Recently, we, the VCK party, had a protest across the state, all over the 38 districts, demanding VVPAT system along with EVM 100%. This is only the solution now for a genuine election. मैं एक बार ब्रीफ कर दूं जो डिमांड बता रहे हैं सांसद जी तिरुमावलवन जी। इंडिया गठबंधन ने डिमांड इलेक्शन कमीशन से ये की है कि अगर आप वीवीपैट नहीं हटा रहे हैं, वीवीपैट से और ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, तो उनके हाथ में पर्ची आनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से वो उनके हाथ में आनी चाहिए और वो पर्ची फिर वो बैलेट बॉक्स में डालें और उन पर्चियों की 100% काउंटिंग हो, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। अदरवाइज जो प्रेजेंट सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें ईमानदारी से चुनाव की कोई संभावना नहीं है। Recent executive committee of district secretaries, we had a meeting in our party headquarters. We passed a resolution that mere EVM system will not credible one. All the citizens, all the voters of our country should come forward to oppose this EVM system. There is a criminal conspiracy behind this EVM system. We believe strongly that there is a connivance in between BJP and the Election Commission. So they are making some malpractices for their victory. So we demand Election Commission should come forward
to implement 100% VVPAT and count only VVPAT after the elections. मतलब जो मैंने पहले बताया कि जो अगर वीवीपैट की पर्ची उनके हाथ में आए और वो पर्ची अपने आप खुद बॉक्स में डालें और बाद में 100% उन वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी भी काउंटिंग हो, उसके बाद ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए. There is a connivance in between BJP and Election Commission for this kind of malpractices for their victory. यानी ये जो धोखाधड़ी हो रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के द्वारा मिल के हो रही है. Already Supreme Court has given a direction to constitute a panel for choosing the election commissioners. In this panel, CJI must be there, Prime Minister and opposition leader, along with them Chief Justice of India must be there. But BJP government, against this Supreme Court verdict, they made a enactment in the parliament that CJI will not be included in this panel. So we believe strongly that there is a conspiracy with the support of Election Commission doing some malpractice for their power to capture the power. That's what we are demanding. Mere EVM system will not be a genuine. So we demand 100% VVPAT implementation. 2 तारीख को हमारी जो टीम है जो You come here. ईवीएम हटाओ संघर्ष मोर्चा उसके साथी भानु प्रताप सिंह जी और डीसी कपिल जी 2 तारीख को गोवा में थे. वहाँ पे उन्होंने 4 जगह पर ईवीएम के खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करके और पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके सारा समझाया. और कल हम लोग, मैं खुद भी और भानु प्रताप जी भी, सिंघा जी भी, कपिल जी भी, कल हम लोग सब लखनऊ में थे. लखनऊ में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ और उसमें भी मशीन से भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ. और हम लोग अब भोपाल में कल 6 तारीख को भोपाल में जा रहे हैं और लगातार पूरे देश में जाके ये मोमेंटम तैयार हो रहा है. और निश्चित तौर पे इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित नहीं हो जाता. सिर्फ एक चीज़ जो मैं भूल गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की सुनवाई थी वोटर लिस्ट के विषय में, मैंने आपको जो डिटेल में बताया, उसमें नेक्स्ट मंडे यानी आने वाला जो सोमवार है तब तक के लिए जो सुनवाई अब स्थगित कर दी गई है. और कुछ क्वेरी हैं जो इलेक्शन कमीशन से मांगी गई हैं कि इनको बताओ. तो अगली सुनवाई ये जो आएगा, इस आज जैसे तारीख है 5, तो 12 तारीख को उस मैटर पे फिर से सुनवाई होगी. Actually, there is a strong anti-incumbency against the BJP government. If there is a genuine election, definitely people will throw away BJP regime. So they are trying to, through EVM, to capture power again. The people of our country must realize what is going on through the election commission in our country. So all the voters across the country, all the democratic forces across the country should come forward to fight against this EVM system. Then only we can protect our constitution and democracy. आप सबका एक प्रश्न होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी आप साथ में क्यों नहीं आता है. आज आपके सामने जवाब मिल गया है, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है. ये बार बार आपका प्रश्न जो है आज आपका सामने 2 सिटिंग एमपी आपका सामने जवाब दे दिया है. ईवीएम को स्क्रैप करना चाहिए और बीजेपी कैसे कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे थ्योरी कर रहे थे. आपकी प्रश्न वो था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आता है. आपका सामने ये बिल्कुल जवाब आपको दे दिया है. थैंक यू वेरी मच. 25 तारीख का जो पीएम का घेराव आप लोग हाँ, 25 एक और अपील करता हूँ कि 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के घर का सामने दफ्तर में हम लोग घेराव करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देश प्रदेश से आकर के इस ईवीएम को उखाड़ के फेंकने में आपका मदद चाहिए. जब तक आप उठ करके नहीं आओगे, घर से बाहर निकलोगे नहीं, इस ईवीएम को ख़त्म करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी. आपका सहयोग आपके डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने में सिर्फ आपका. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।